بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ نکل جا یہاں سے، میری بڑی نند نے میرا بچہ مجھ سے چھینا اور مجھے گھر سے باہر دھکے دینے لگی۔ میں نے بڑی نند کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، باجی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میری نند چلائی، میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے میرا گلا پکڑا اور زور سے میرے گلے کو دبانے لگی۔ میری ساس جو اطمینان سے چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی بولی، ارے چھوڑ دے شہلا اس کمبخت کو، کیا اسے جان سے مار ڈالے گی؟ وہ مر گئی تو خیر ہے، مگر تجھے جیل ہو جائے گی، میں تجھے کیسے بچاؤں گی؟ میری نند نے میرا گلا چھوڑ دیا۔ میں ہانپنے لگی تھی، لگ رہا تھا کہ آج وہ مجھے مار ہی ڈالے گی۔ میری سانس بحال ہوئی تو میری نند نے 2 زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارے اور بولی، تجھے کیا لگتا ہے سسرال میں گزارے کرنا اتنا آسان ہے؟ ایسے نہیں ہوتے گزارے، سر جھکا کر جینا پڑتا ہے، تب جا کر 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، سمجھ گئی؟ میرا 9 مہینے کا بیٹا جو اپنی پھپھو کی گود میں مسلسل رو رہا تھا، اس نے میرے بیٹے کو میری گود میں دیا اور بولی، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، جا کر کچن کی اچھی طرح سے صفائی کر اور دوبارہ سے میرے لیے کھیر تیار کر۔ میں سسکیاں لیتے بیٹے کو لیے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی کمرے میں جانے لگی میری نند چلائی، وہاں کدھر جا رہی ہے؟ تجھے کمرے میں نہیں کچن میں جانے کے لیے کہا ہے۔ میں ڈر کے مارے کچن میں چلی گئی۔ کچن میں کرسی پر بیٹھے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر وہ خاموش ہو گیا تو میں نے دوبارہ دیگچی چولہے پر رکھی اور کھیر تیار کرنے لگی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں کھیر تیار کر رہی تھی، بیٹا گھٹنوں کے بل چلنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر بھی رکھی ہوئی تھی۔ بیٹا نیچے ہی کھیل رہا تھا، اچانک زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑے کو پکڑ کر منہ میں لے جانے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھ لیا۔ میں فوراً بیٹے کی طرف لپکی، اس کے ہاتھ سے کیڑا چھین کر اسے دور پھینکا کہ اسی اسنا میں کافی سارا دودھ ابل کر چولہے پر گر گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ نند نے صبح ناشتے کے بعد ہی فرمائش کی تھی کہ آج میرے لیے کھیر بنانا۔ میں ناشتے کے بعد ہی کھیر بنانے کھڑی ہو گئی، مگر میری نند غصے کی اتنی تیز تھی کہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں بخشتی۔ مجھ سے تو اسے خدا واسطے کا بیر ہے۔ میری 2 چھوٹی نندیں اور ایک دیور بھی ہے، وہ بھی کسی آفت سے کم نہیں ہے۔ بڑی نند کا نام شہلا ہے، وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ بدقسمتی سے شادی کے 5 سال بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا 3 سال کا۔ ان کے شوہر نے بچہ چھین کر انہیں طلاق دے دی، کیونکہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں اس کی سیٹنگ کسی اور لڑکی سے بن چکی تھی۔ طلاق اور بچے کے چھن جانے کی وجہ سے میری نند 6 ماہ تک تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بڑی محنت کے بعد ریکور ہوئی۔ میری ساس تو ڈر گئی کہ کہیں بیٹی پاگل ہی نہ ہو جائے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری نند کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ مجھے بخشنا تو دور کی بات، جب سے میری نند گھر آ کر بیٹھی ہے تب سے اس نے اس گھر میں میرے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کسی سے بھی بننے دیے۔ اب تو میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں ہر وقت خوفزدہ رہتی ہوں کہ کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ میں نے کھیر تیار کر کے دیگچی چولہے سے اتاری۔ فوراً میری نند کچن میں آ گئی اور بولی، ہو گئی تیار؟ میں نے کہا، جی باجی بالکل تیار ہے۔ میری نند نے کھیر کو چکھا اور بولی، گزارا کر گئی ہے، اسے فریج میں رکھ دے تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اتنے میں میرا بیٹا میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ میری ٹانگوں کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نند نے دیکھا تو میرے بیٹے کو گود میں اٹھا کر چل دی اور بولی، جیسے کھیر ٹھنڈی ہو جائے میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ جتنی دیر میری بڑی نند میرے ارد گرد رہتی میں ڈرتی رہتی۔ عمر میں بھی بڑی تھی، اسی وجہ سے انہیں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے شوہر کا نمبر دوسرا تھا۔ میرے شوہر سے ان کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ایک نے میٹرک کیا ہوا ہے، اس کا نام نائلہ ہے، اور اس سے چھوٹی بہن کا نام افرا ہے، وہ ایف اے کر رہی ہے، اور اس سے چھوٹا دیور ہے، وہ 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر ایک ہے میرے شوہر، مگر میرے شوہر کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی کیسے ہی مجھے ذلیل کرتا، وہ تو اپنے بیٹے کو بھی وقت نہیں دیتے تھے۔ وہ شہر کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹر میں سیلز مین ہے۔ میرے سسر کی اپنی تندور ہے، وہ روٹیاں بناتے اور پکوڑے بیچتے ہیں۔ بس اسی طرح مل جل کر زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔
घर के हालात से तंग आकर मेरी नंद नायला ने 1 माह पहले ही मोहल्ले की खाला से सिलाई सीख कर घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। मैं किचन से सफाई करके निकली तो मेरी सास ने कहा, ज़ैनब, ये सब्ज़ी मैंने बना दी है, दोपहर के खाने के लिए तैयार कर देना और रात के खाने में सबके लिए कबाब फ्राई कर देना, रोटी से खा लेंगे। मैंने कहा, अम्मी, आटा ख़त्म पड़ा है। मेरी सास ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, आय हाय, तो अब बता रही है। मैंने कहा, अम्मी, मैंने तो रात को भी बताया था कि सिर्फ सुबह नाश्ता बनेगा, उसके बाद आटा ख़त्म है, भूल गई आप। मेरी सास बोली, अरे हाँ, देखो तो शोएब को तो मैंने कहा भी था कि दोपहर के लिए आटा रख जाना, अब क्या बनाएंगे। मैंने कहा, अम्मी, चावल उबाल लेती हूँ। वो बोली, चावल उबाल लो, चावल हो सकता है शाम को घर आते हुए वो लेता आए। मैंने सब्ज़ी की टोकरी उठाई और दोबारा किचन में चली गई। सुबह से शाम फिर मगरिब हो गई। मेरे ससुर भी घर आ गए। मेरे ससुर ने बरामदे में रखी चारपाई पर बैठते हुए अपने बाजू के कफ ऊपर किए और बोले, ज़ैनब बेटा, खाना ले आ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर वो वॉशरूम चले गए। उसी असना में मेरी सास मगरिब की नमाज अदा करके कमरे से निकली और बोली, ज़ैनब, शोएब तो अभी तक नहीं आया, बड़े साहब को क्या देंगे। मैंने कहा, अम्मी, दोपहर का खाना बचा पड़ा है, अब्बू तो खा लेंगे, हम बाद में खा लेंगे जब आटा आ जाएगा। मेरी सास बोली, ये भी ठीक है, जल्दी से खाना गर्म करके कमरे में ले आ। चाय के खोखे पर खूब रौनक लगी थी। खोखे से बाहर भी ओस दर्जे की मेज़ कुर्सियाँ रखी गई थी। चाय के खोखे के एन सामने नाई की दुकान थी जिसमें ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा था। सिकंदर, करमदीन और 2 साथी चाय के खोखे के बाहर मेज़ पर रखी कुर्सियों पर ताश की बाजी लगाए बैठे थे। एक आदमी ने कहा, सिकंदर भाई, जुए में तेरे मुकद्दर बड़े तेज़ हैं, तेरे साथ तो खेलते हुए भी डर लगता है। सिकंदर ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए कहा, ओए छोटे, तू छोटा ही रहेगा। भाई सिकंदर के साथ मिलने के लिए तुझे बड़ा वक्त चाहिए। छोटा भाई बोला, सिकंदर भाई, तुम्हारा मुकाबला करने की तो मेरी औकात ही नहीं है, बस गुजारिश है कि मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो। ये सुनकर सिकंदर हंस पड़ा। इतने में शोएब वहाँ आया। शोएब को देखते ही सिकंदर बोला, ओए शोएब, तू क्या दूर से ही चिल्लाएगा। शोएब सिकंदर को देखकर रुक गया, उनके पास ही आकर कुर्सी पर बैठ गया। इतने में सिकंदर ने नाई को आवाज़ दी, ओए ज़हीरे, खुदा का वास्ता इस दिलबर को बंद कर दे। लगाना है तो कोई मैडम नूर जहाँ को लगा, कोई माहौल तो बने। उसी वक्त म्यूज़िक बंद हो गया। सिकंदर इलाके का भाई था, सब लोग उससे डरते थे। सिकंदर ने शोएब को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, हाँ तो शोएब जिगर यार, तू तो अब नज़र ही नहीं आता है, पता है पूरे 10 दिन बाद आया है। शोएब ने कहा, सिकंदर भाई, तुम क्या चाहते हो कि मैं रोज़ आऊँ ताकि तुम भी बेच कर खा जाओ। ये सुनकर सिकंदर कहका लगाकर हंसा और बोला, ना यार ना, तो कोई बेचने वाली चीज़ है। कमाल बोला, यार शोएब, तुझ जैसे कंगले को कौन ख़रीदेगा। ये सुनकर सब कहका लगाकर हंस पड़े, जबकि शोएब ने बुरा मुंह बनाते हुए उन्हें देखकर उठकर जाने लगा कि सिकंदर ने शोएब का बाजू पकड़ लिया और बोला, यार तू तो नाराज़ हो गया है, चल बैठ जा, बैठ जा। कमाल शोएब, इतना बड़ा कीमती नगीना है, तुझे क्या मालूम। ये सुनकर शोएब दोबारा बैठ गया। सिकंदर बोला, शोएब, तू इतने दिन बाद आया है तो एक बाजी हो जाए। शोएब ने कहा, सिकंदर भाई, मैंने घर जाना है। सिकंदर ने कहा, ओ चला जाना, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहा है। शोएब बोला, सिकंदर भाई, लेकिन मैं बाजी में पैसे नहीं लगाऊंगा, मैंने घर आटा लेकर जाना है। कमाल मुंह ही मुंह में हंसने लगा। ये देखकर सिकंदर को गुस्सा आ गया और बोला, ओए कमाल, चल दफा हो यहाँ से। कमाल उठकर खोखे के अंदर चला गया। सिकंदर ने कहा, तू ना पैसे लगा, मुझे तो बस तेरे साथ खेलने में मज़ा आता है। शोएब और सिकंदर की बाजी शुरू हो गई थी। सिकंदर के साथी और कुछ और लोग भी उनके गिर्द खड़े थे और खूब हल्ला गुल्ला करने लगे। काफ़ी देर बाजी चलती रही, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अचानक शोएब को ख्याल आया। वो बोला, सिकंदर भाई, क्या वक्त हो गया। एक आदमी ने कहा, 10 बजने वाले हैं। ये सुनते ही शोएब अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, क्या
10 बज गए? सिकंदर बोला, क्या हुआ, 10 ही तो बजे। शोएब ने कहा, सिकंदर भाई मैंने घर आटा लेकर जाना है, पता नहीं दुकान खुली भी होगी या नहीं। ये कहकर शोएब वहाँ से भाग पड़ा। सिकंदर पीछे से चिल्लाया, ओए हौसला हौसला। सिकंदर कहका लगाकर हंस पड़ा। कमाल खोखे से बाहर आया और सिकंदर के कान में बोला, मैं ना कहता था कि इस कंगले को कौन खरीदेगा। सिकंदर ने कमाल की तरफ देखा, उसका कॉलर पकड़कर अपने करीब किया और उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, कमाल, कभी कभी कबाड़ का माल भी बहुत अच्छे दामों बिक जाता है, मगर तू समझेगा नहीं। छोटा सा मोहल्ला था, यहाँ दुकानें लोग जल्दी बंद कर देते। शोएब 2-3 दुकानों पर फिरा, मगर करियाने की तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी। वो मायूस होकर घर की तरफ चल पड़ा। अम्मी ने तो तूफान खड़ा कर देना है। खामोश गलियों से होते वो पैदल ही पैदल घर की तरफ जा रहा था। दरवाज़ा खटखटाने लगा, मगर दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ। बरामदे में बैठी माँ को देखते ही उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसने दरवाज़ा लॉक किया। माँ ने कहा, आ गया मेरा लाल, आटा कहाँ है? ये सुनकर कमरे में से मैं निकल आई। शोएब बोले, अम्मी आज प्लाजे में निकलने से देर हो गई, वापस आया तो यहाँ सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अम्मी चिल्लाई, अरे कमबख्त, देर जो हो गई थी तो वहीं बड़ी मार्केट से लेता था। तेरे अब्बा तो दोपहर का बचा हुआ खाना खाकर सो गए, हम सब क्या खाएंगे? मेरा देवर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपने हाथ में किताब पकड़ी थी। वो किताब अपने सर पर मारते हुए बोला, ओए शाबाश है भाई। अम्मी ये कौन सा पहली बार हो रहा है, भाई को फिक्र कब है? ये कहकर वो कमरे में वापस चला गया। अम्मी ने कहा, शोएब तेरा ध्यान कहाँ रहता है? अब बता क्या खाएंगे? शोएब बोले, अम्मी चावल बना ले, वो तो पड़े होंगे। अम्मी ने कहा, अभी चावल बना लेंगे, सुबह नाश्ते में भी चावल खाएंगे क्या? शोएब झिंझला कर बोले, ओ माँ एक टाइम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। ये कहकर वो पाँव पटकते हुए कमरे में आ गए। अम्मी बोली, अल्लाह ने चुनकर मुझे कबाड़ का पीस दिया है। ज़ैनब चल जाकर चावल उबाल, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैंने कपड़े धोए और कपड़े लेकर सीढ़ियों के ऊपर चलने लगी। धुले हुए कपड़े ऊपर छत पर डालने थे। जैसे ही मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, मुझे हंसने की आवाज़ आई। ऊपर कौन था? मैं ठटक कर रुक गई। फिर बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैंने कान लगाकर सुना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बड़े खुशगवार माहौल में गपशप हो रही हो। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर की तरफ खींचा। मेरे मुंह से एक चीख निकली और कपड़ों की बाल्टी मेरे हाथ से छूटकर सीढ़ियों से नीचे गिरी जा रही थी। मेरी बड़ी नंद शहला ने मेरा बाजू पकड़कर मरोड़ा और बोली, चुपके चुपके क्या सुन रही थी? हाँ, मैंने कहा, बाजी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मगर मेरी नंद जो मुझे बिल्कुल नीम पागल लगती थी, दांत पीसते हुए बोली, तो मुझे जहर लगती है, दिल करता है तुझे जान से मार दूं। क्या सुन रही थी मुझे बता? मैंने कहा, मैं तो कुछ नहीं सुन रही थी बाजी, मैं तो छत पर कपड़े डालने आ रही थी। मेरी नंद ने मेरी चुटिया पकड़कर मुझे 3-4 थप्पड़ लगाए और बोली, आज तेरा किस्सा ख़त्म। ये कहकर मेरी नंद ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचते हुए छत से नीचे लाने लगी। मैंने कहा, बाजी मेरा हाथ छोड़ें, मेरा यकीन करें मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो छत पर कपड़े डालने आ रही थी। मेरी नंद मुझे खींचते हुए नीचे ले आई। मेरी सास और दोनों नंदें नायला और इफ़रा भी बाहर आ गई। मेरी सास चिल्लाई, अब क्या आफत आ गई है? मेरी नंद मुझे लेकर नीचे आई। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोली, अम्मी आफत तो कब की आ चुकी है, ये बात और है कि अब तक हमारी नज़रों से ओझल थी। मेरी सास बोली, क्या बकरी है, साफ साफ बता। मैंने कहा, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो छत पर कपड़े डालने के लिए जा रही थी। मेरी नंद शहला चिल्लाई, चुप, बस बहुत हो गया। अम्मी क्या मैं आंखों पर पट्टी बांध कर रखती हूँ? तुम्हारी बहू इलाके के बड़े बड़े लोगों के साथ चक्कर चला रही है। हम सब की इज्जत का जनाजा तो पहले ही निकल चुका है, न जाने कब से ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मेरी नंदे, मेरी सास सब आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, नहीं नहीं ये सच नहीं है, बाजी खुदा के लिए मुझ पर जुल्म ना करें। मेरी सास बोली, ज़ैनब
शहला क्या कह रही है? मैं चिल्लाई। अम्मी, शहला बाजी झूठ बोल रही हैं। ये सुनते ही मेरी नंद ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे ज़ोर से ज़मीन पर धक्का दिया और चिल्लाई, चल हट, तेरे जैसी नापाक औरत को घर में होना ही नहीं चाहिए। मुझे झूठा कहती है? मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैंने बाल्टी की तरफ इशारा करके कहा, अम्मी वो देखें बाल्टी, मैं छत पर धुले हुए कपड़े लेकर जा रही थी तार पर डालने के लिए। अम्मी ने कहा, ज़ैनब तू जानती है शहला क्या कह रही है? तेरे पास तेरी बेगुनाही का क्या सबूत है? मैं खामोश हो गई। मेरी नंद शहला बोली, मेरे पास इसके जुर्म का सबूत है। मैंने चौंक कर नंद की तरफ देखा। वह करते हुए बोली और अम्मी के बराबर जाकर खड़ी हो गई और बोली, जानती है अम्मी कौन है इसका आशिक जो छुप छुप कर छत पर इससे मिलने आता है? मेरी नंद नाइला बोली, कौन है बाजी, अब बता भी दे। शहला बाजी ने कहा, इस इलाके का भाई सिकंदर। हाँ। ये सुनते ही नाइला और इफ़रा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इफ़रा बोली, बाजी ये क्या कह रही हो? शहला बाजी ने कहा, सच को सबूत की ज़रूरत नहीं होती, वो एक दिन खुद बेनकाब हो जाता है। मेरी सास मेरे करीब आई। मैं ज़मीन पर बैठी हुई थी। मेरी सास ने कहा, ज़ैनब क्या शहला सच कह रही है? मैंने डरते डरते कहा, नहीं अम्मी, बाजी सच नहीं कह रही हैं। मेरी सास दोबारा चिल्लाई, ज़ैनब क्या शहला सच कह रही है? मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं बेकसूर हूँ। मेरी सास ने आओ देखा न ताओ मुझे पाँव से मारना शुरू कर दिया। बता बता ज़ैनब, क्या शहला सच कह रही है? बता ज़ैनब। मैं दर्द से सिरफ कर आ रही थी। मुझे किसी ने कुछ कहने के लायक छोड़ा ही कहाँ था। इतने में मेरा 9 माह का बेटा भी रोते रोते घुटनों पर चलता मेरे पास आ गया। इसी दौरान नाइला ने मेरी सास को पकड़ लिया और बोली, बस करें अम्मी, क्या मार देंगी इसे? नाइला ने अम्मी को पीछे खींचा। मेरी सास चिल्लाई, छोड़ मुझे नाइला, मैंने भी आस्तीन में नागिन पाल रखी है। मेरी नाक के नीचे क्या होता रहा मुझे पता ही नहीं चला। बहुत हिम्मत करके मैं उठी। इफ़रा ने कहा, भाभी अंदर चली जाओ वरना अम्मी ने तुम्हें आज मार ही देना है। मैं लंगड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरी सास मुसलसल चिल्ला रही थी, नाइला छोड़ दे मुझे। मैं कमरे में गई तो मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने रोते हुए बेटे को बेड पर बिठाया और ख़ुद बेड पर दराज हो गई। शहला बाजी, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? कौन सा बदला लिया है? मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। शाम का वक्त था। मेरे ससुर तो मगरिब के बाद ही घर आ जाया करते थे। शोएब को आने में अभी घंटा रहता था। दोपहर को ही मैं अपने कमरे में बंद थी। मेरा बेटा सो रहा था। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आज मेरे दिमाग पर हथौड़े चला रही थी। रात के 8 बजे फिर 9 बजे मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं खामोशी से दरवाज़ा देख रही थी। मुझे उस दरवाजे के खुलने से भी खौफ आ रहा था। दस्तक दोबारा हुई। मैं उठी तो मेरी सास ने मुझे इतना मारा कि मेरा जोर जोर दर्द कर रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला। इफ़रा खड़ी थी। कहने लगी, आपको अब्बू बुला रहे। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और जैसे ही ससुर के कमरे में आई ठटक कर रुक गई। अंदर तो अदालत लगी थी। मेरे ससुर, सास, शोहर, बल्कि मेरी अम्मी अब्बू भी बैठे थे। मेरी सास ने फ़ोन करके उन्हें भी बुला लिया। मुझे देखते ही अम्मी उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ लपकी। मेरे चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरा और बोली, ज़ैनब ये क्या हालत बना रखी है? तेरी आंखें तो रो रो कर सूजी हैं। अब्बू कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, ज़ैनब अपना सामान पैक करो, हमारे साथ चलो। मेरे ससुर भी खड़े हो गए और बोले, शकील साहब अब अपनी बेटी से कुछ नहीं पूछेंगे? मेरे अब्बू ने कहा, भाई साहब मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, मगर जो इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगाया गया है उसके बाद मैं बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैंने अपने ससुर से कहा, अब्बू शहला बाजी ने जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा है आप उसे बुलाएं ताकि सबूत पूरा हो जाए। मेरे ससुर ने कहा, ओ बस कर ज़ैनब, जितना बात को बढ़ाओगी उतना अपने सर में खाक पड़ेगी, इसलिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि सच क्या है तुम खुद बता दो। मैंने कहा, अच्छा यानी जो झूठ सबको बताया गया है आप कह रहे हैं कि मैं उस झूठ की तोहमत अपने मुंह पर मल लूँ? मेरे ससुर खामोश हो गए और कुछ नहीं बोले। मेरे शोहर खामोश खड़े थे। मैंने कहा, शोएब आप क्यों खामोश खड़े? मेरी अम्मी ने कहा, चल ज़ैनब छोड़ ये बातें, घर चलें। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं बेगुनाही का सबूत दिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगी। अब्बू ने कहा कि ज़ैनब जिन्हें इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आई, तुम उनके साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो?
میں نے کہا امی یہ الزام ہی تو ثابت کریں گے یا میں ثابت کروں گی، کیونکہ صرف باتوں سے شہلا بازی کا الزام سچ ثابت نہیں ہوتا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی مجھے ساتھ لے جانے کی، مگر میں اس الزام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آخر ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دے کر چلے گئے۔ میں امی ابو کو چھوڑنے کے لیے گیٹ پر آئی۔ ابو نے کہا بیٹا صرف ایک کال کرنا، میں خود بیٹی کو لینے آؤں گا، کسی سے ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے انہیں الوداع کیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ شہلا بازی کمرے میں کھڑی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، مگر میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا بیٹا سو چکا تھا۔ میں کچن میں آئی، اس کے لیے فیڈر بنایا، اسے فیڈر پلا رہی تھی کہ میرے شوہر کمرے میں آئے۔ انہوں نے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور کمرے سے جانے لگے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کی کوئی رائے نہیں؟ وہ رک گئے اور بولے مجھے نہیں پتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، مثبت یا منفی، مگر جس کی نہیں ہوتی وہ بزدل ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے جواب نہیں دیا اور کمرے سے چلے گئے۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، میں نے سارا وقت سر جھکا کر گزارا تھا، مگر اب جو بات بن گئی تھی اس کے لیے مجھے سمجھداری دکھانی تھی تاکہ میں دوبارہ سے سر اٹھا کر جی سکوں۔ میری تو پہلے ہی گھر میں کوئی وقت نہیں تھی، مگر اس دن کے بعد سے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ بات بات پر جھڑکیاں، گالیاں، تانے میرا مقدر بن چکے تھے۔ میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ ہلکی سردیاں شروع ہو چکی تھی۔ میرے سسرال میں تو ویسے بھی سب کو جلدی سونے کی عادت تھی۔ میرا بیٹا سو چکا تھا تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ خالی نگاہوں سے خلا میں گھورتی رہی یا گھڑی کی ٹک ٹک سنتی رہی۔ تنہائی نے راتوں کو اور بھی طویل کر دیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی۔ رات کے 10 بجے تھے، سب اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ میرے شوہر نے اس دن کے بعد سے بیٹھک کو اپنی آرام گاہ بنا لیا۔ اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی آہستہ سے باہر کا دروازہ کھول رہا ہو۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں اٹھی، اپنے پاس رکھی سائڈ ٹیبل سے ٹارچ اٹھائی اور جلدی سے بستر سے اتری، چپل پہنی اور دروازہ کھول کر باہر کے گیٹ کی طرف دیکھا تو کالے کپڑوں میں کوئی دروازے سے نکلا اور اس نے دروازہ بند کیا۔ یہ کون تھا؟ اور وہ بھی اتنے پراسرار طریقے سے؟ میں نے اپنی چادر اپنے گرد لپیٹی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ وہ جو بھی تھا میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جیسے اس نے کالے رنگ کا لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا، چہرہ بھی ڈھانپا تھا، کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، گلی میں کچھ دور مجھے وہی کالے چوگے کے ساتھ جاتا دکھائی دیا۔ یہ کون تھا؟ مجھے باہر جانا چاہیے یا نہیں؟ آخر میں اللہ کا نام لے کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے اتنے خوفناک طریقے سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو یہی سمجھ جاتا کہ کوئی بھوت جا رہا ہو۔ میں اس کے پیچھے تھی، کوئی کچھ بھی کہے مگر مجھے یقین تھا کہ یہ بھوت نہیں ہے۔ چلتے چلتے مارکیٹ کی طرف مڑ گیا۔ میں گلی میں رک گئی، جاگ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک گاڑی تھی۔ کالے لباس میں ملبوس وہ شخص گاڑی کے پاس رکا۔ گاڑی کا کالا شیشہ ذرا سا نیچے ہوا اور اس سے باتیں شروع کر دی۔ گاڑی کے اندر کون تھا؟ اس نے اسے تھوڑی سی بات چیت کی اور واپس مڑا۔ اسے دیکھتے ہی میں گھر کی طرف بھاگی، کیونکہ جو کوئی بھی تھا وہ میرے گھر سے تھا تو اس نے تو گھر ہی آنا تھا، اور اس کے آنے سے پہلے میں نے گھر پہنچنا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں گھسی، دروازہ بند کیا، مگر یہ کیا؟ سب گھر والے سوائے افرا اور میرے چھوٹے دیور کے سامنے برآمدے میں کھڑے تھے۔ یقیناً وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں اکا بکا سب کو دیکھ رہی تھی۔ میری ساس بولی واہ بہو واہ، کیا بات ہے، گھر کی جوان بہو رات کے 11 بجنے والے ہیں، باہر گھوم رہی ہے۔ میں نے کہا امی میں کہیں نہیں گئی تھی، میں تو خود کسی کا پیچھا کر رہی تھی۔ اتنے میں شہلا بازی کمرے سے نکل آئی اور بولی امی خود دیکھ لیں کہیں حسرت نہ رہ جائے، پھر مجھے نہ کہنا کہ میں الزام لگا رہی ہوں، کیونکہ جھوٹ اور سچ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مگر میں تو حیران ہوں کہ یہ جھوٹی عورت یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ میں نے کہا شہلا باجی زبان سنبھال کر بات کریں۔ اتنے میں میرے شوہر بھی بیٹھک سے نکل آئے۔ میری ساس میرے قریب آئی، اس نے میرا بازو پکڑا اور بولی یاد ہے کچھ دن پہلے یہی شہلا میری بیٹی تیرا بچہ چھین کر تجھے گھر سے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ شہلا چھوڑ دے اس کل موہی نمک حرام اور بے وفا عورت کو۔ میرے شوہر بولے اماں کیا ہوا ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میری ساس نے کہا اس سے پوچھ بیٹے، تیری بیوی رات کے 11 بجے باہر کس سے ملنے گئی تھی؟ میں چلائی شعیب یہ سچ نہیں ہے، کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ مگر میری ساس نے کہا ہاں
सच तो सिर्फ वो है जो तू बोलती है। आज तेरा फैसला होकर रहेगा, अब इस घर में तू नहीं रहेगी, चल निकल। मेरी सास मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकालने लगी। मेरे ससुर बोले, अरे बस कर शहला, पूरे मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। मगर मेरी सास ने कहा, बड़े साहब, तमाशा बनना क्या बाकी रह गया है? मुझे किसी तमाशे की परवाह नहीं। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप ज्यादती कर रही हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर मेरी सास मुझे घर से धक्के देकर निकाल रही थी। यहाँ से शोर की आवाज़ सुनकर आस पास के पड़ोसी भी घर से निकल आए। हमारे पड़ोसी महबूब अंकल ने कहा, क्या हुआ भाभी, कैसा शोर है? मेरी सास बोली, मेरी बदकिरदार बहू अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं मिन्नतें करने लगी। मोहल्ले वाले मेरी सास को समझाने लगे कि आखिर महबूब अंकल ने कहा, बस कर दें भाभी, इंसाफ का तकाजा है कि मुजरिम को भी उसकी सफाई में बोलने का मौका दिया जाए। इतने में शहला बाजी आई और बोली, आप ठीक कह रहे हैं अंकल। फिर शहला बाजी ने मुझे अम्मी से छुड़वाया और बोली, छोड़े अम्मी, जानती है ना कि भाभी अपनी बेगुनाही का सबूत दिए बगैर कहीं नहीं जाने वाली, इन्हें खुद को बेगुनाह साबित करने दें। अम्मी ने मुझे छोड़ दिया। महबूब अंकल ने मामले को रफा दफा किया तो मेरी जान बख्शी हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं बेड पर बैठी यही सोच रही थी कि उसी असना में मेरे शोहर और ससुर कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं खड़ी हुई। मेरे ससुर ने कहा, शोएब, अपनी बीवी से बात करो, ये क्या हो रहा है? क्योंकि अब बात घर से निकल गई है, हम लोग खुद को बेइज्जत नहीं करवा सकते। ये कहकर ससुर चले गए। मेरे शोहर ने कहा, ज़ैनब, ये सब क्या है? कई साल हमारी शादी को हो चुके मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा, शोएब, यही तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सब सच क्या है। कोई है जो मेरा भी नहीं इस घर का भी दुश्मन है? क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं जैसे सब कह रहे हैं? मेरे शोहर ने झिंझलाते हुए कहा, ज़ैनब, जो करना है जल्दी करो ताकि किसी फैसले पर पहुँचे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये कहकर मेरे शोहर कमरे से चले गए। चंद ही दिन में उस घर में बिल्कुल मैं अजनबी होकर रह गई। कोई मेरे साथ बात करता, ना ही घर के किसी काम को हाथ लगाने देता। मेरी सास ने छोटा सा सिलेंडर और दूध बनाने वाला सामान मुझे कमरे में रखवा दिया कि मैं बेटे का दूध बनाने के लिए किचन में भी ना जाऊँ। मैं कमरे में ड्रेसिंग के सामने बैठी अपनी चुटिया बना रही थी कि मेरी सास और इफ़रा कमरे में आई। मेरी सास ने कहा, इफ़रा, ये सारा सामान उठा और किचन में वापस ले जा। उसके बाद मेरी सास ने मेरे बेटे को गोद में उठाया और बोली, ये मेरा पोता है, मैं अपने पोते को तेरे गलीज साए में बढ़ने नहीं दूंगी। मैं चिल्लाई, नहीं अम्मी, खुदा के लिए ऐसा ना करें, मेरे बेटे को मुझसे जुदा ना करें। मेरी सास बोली, इफ़रा, भतीजे के सारे कपड़े अलमारी से निकाल। मेरे कमरे में पहुंचा। मैंने कहा, अम्मी ऐसा ना करें। मेरी सास ने मुझे धक्का दिया। मैंने उनके पैरों को पकड़ लिया और बोली, अम्मी, खुदा के लिए। मगर मेरी सास अपने हवासों में नहीं थी। वो बाहर की तरफ ये कहते हुए चल पड़ी, अगर तुझ में ज़रा भी शर्म है तो इस घर से दफ़ा हो जा, कि ऐसा ना हो कि मैं तेरी जान ले लूँ। बात यहीं पर नहीं रुकी। सारा दिन मैं कमरे में सिसकियाँ लेती रही। असर के वक्त मेरी सास कमरे में आई। उन्होंने नाइला से कहा, नाइला, एक कंबल, तकिया और गद्दा छत पर पहुँचा दे। मुझे कलाई से पकड़ा और बोली, अब तू कमरे में नहीं रहेगी, समझ गई? तेरा बिस्तर छत पर पहुँचा रही हूँ, वहीं रहेगी। नाइला मेरा बिस्तर उठाकर छत पर ले गई। सास ने मेरी कलाई से पकड़कर मुझे बाहर खींचा और धक्का दिया। मैं हक्का बक्का सास को देख रही थी। सास ने मेरे कमरे को ताला लगाया और बोली, ज़ैनब, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, तेरा साया भी इर्द गिर्द नहीं मंडलाना चाहिए। मैं शदीद सदमे में कुछ बोल नहीं सकी। मेरी सास अपने कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा बेटा काफ़ी देर से रो रहा था। यकीनन वो मेरे पास आने के लिए रो रहा था, मगर मेरी बड़ी नंद उसे ज़बरदस्ती चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं छत पर जाने लगी। मेरी नज़र कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी। शैला बाजी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने चंद लम्हे उन्हें देखा और छत पर चली आई। हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में छत पर एक कंबल में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। छत पर एक कमरा भी था, मगर बहुत पुराना बना हुआ था, इसीलिए काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था। दरवाज़ा तो कुछ बेहतर था, मगर कमरे की खिड़कियों के दरवाजे टूट चुके थे। मैं छत पर गई। नाइला मेरा बिस्तर कमरे के अंदर ज़मीन पर ही फेंक गई थी। मैंने अपना बिस्तर उठाया। कमरे में कुछ पुराना सामान पड़ा था। मैंने कमरे की सफाई की, फर्श पर ही बिस्तर बिछा लिया। फिर कमरे से बाहर छत पर टहलने लगी। मेरा दिमाग मुख्तलिफ मंसूबे बना रहा था, मगर मेरा दिल किसी पर राज़ी नहीं हो रहा था। अचानक नीचे आवाज़ें आने लगी। मेरे शोहर आए थे।
वो इतनी जल्दी तो नहीं आते थे। मैंने ऊपर से ही झांक कर देखा। नाइला ने कहा, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? इतने में अम्मी मेरे बेटे को गोद में लिए अपने कमरे से बाहर आई और बोली, शोएब क्या हुआ? मेरे शोहर बोले, बुरी खबर है, बड़ी खाला का इंतकाल हो गया। मुझे अभी नाना की कॉल आई थी तो मैं छुट्टी लेकर फ़ौरन घर आ गया। मेरी सास ने कहा कि ये तू क्या कह रहा है शोएब? अल्लाह, मेरे घर पर कैसी मुसीबत आई है, सिर्फ बुरी खबरें मिल रही हैं। शैला, नाइला, जल्दी चादर लाओ, मेरी बहन दुनिया से चली गई। मेरे शोहर की मुझ पर नज़र पड़ गई और बोले, ज़ैनब तुम भी आओ, चलने की तैयारी करो। मेरी सास चिल्लाई, कितना बेशर्म है तू शोएब। मेरी सास ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे शोहर के मुंह पर मारा। बेशर्म आदमी, इसको अपने ख़ानदान में लेकर जाऊंगी? क्या मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है? सब ने तैयारी की और घर से चले गए। शोएब ने अलविदाई नज़र मुझ पर डाली और वो भी चले गए। शायद उनके दिल के किसी कोने से आवाज़ आती थी कि उनकी बीवी बेवफा नहीं है। आधी रात का वक्त था। मैं छत के कमरे में बैठी थी। अचानक एक 12-13 साल का बच्चा हाथ में मोमबत्ती लिए कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर खौफ से खड़ी हो गई। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ, इस कमरे में सारा दिन आपकी बातें सुनता रहता हूँ। मैंने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। दरअसल मैं यहाँ अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज से 6 साल पहले मुझे मेरी माँ यहाँ छोड़ गई थी। उसने कहा था कि वो वापस आएगी, मैं कहीं नहीं जाऊँ। मैं बस तब से अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जिनज़ादा हूँ, मैं भी आपकी तरह बिल्कुल अकेला हूँ। ना जाने मेरी माँ कहाँ रहेगी, वो वापस आएंगी भी या नहीं। ये कहते हुए उस बच्चे की आंखों से आंसू के चंद कतरे गिरे। वो चुप हो गया। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। यानी औरत किसी भी मखलूक की क्यों ना हो, वो इतनी बेबस और लाचार क्यों होती है? न जाने इसकी माँ की क्या मजबूरी होगी कि उसने बेटे को यहाँ छोड़ा और अब तक पलट कर ना आई। मैं डरते हुए उस बच्चे के करीब गई और बोला, परेशान ना हो, तुम्हारी माँ की यकीनन कोई मजबूरी होगी, देखना वो जल्द आ जाएगी। उस बच्चे ने मोमबत्ती को नीचे रखा और ख़ुद भी बैठ गया। बोला, मुझे ये सब आपके साथ बुरा सलूक करते तो दुख होता है। मैं भराई आवाज़ के साथ बोली, कभी कभी शराफत भी इंसान को महंगी पड़ जाती है। वो बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं मुस्कुराई। तुम मेरी क्या मदद करोगे? वो कहने लगा कि मैं आपके लिए। इतने में ऐसे लगा कि जैसे घर के अंदर कोई कूदा हो। मैं जल्दी से उठी और बाहर की तरफ भागी। मैंने छत से नीचे देखा, कोई नज़र नहीं आया। घर की तमाम लाइट चल रही थी, सिर्फ छत के ऊपर ही लाइट नहीं थी, इसलिए ऊपर अंधेरा था। अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई, बात सुनो। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मेरी जान निकल गई। कमीज़ शलवार में मलबूस बड़ी सी चादर लपेटे, मुंह को भी चादर से ढांपे कोई आदमी खड़ा था। मैंने कहा, कौन हो तुम, अंदर कैसे आए? वो कहने लगा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं चिल्लाई, खबरदार मेरे करीब मत आना वरना मैं इस छत से कूद जाऊंगी। वो बोला, रुको, ये गलती मत करना। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था कि अचानक न जाने कौन पीछे से भागता आया। काले चूगे में उस आदमी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, रुक जा जलील। उसने उस आदमी को धक्का दिया। वो उस आदमी पर हमला करता कि जिनजादे ने हाथ में मोमबत्ती उस आदमी की तरफ उछाल दी। मोमबत्ती उसके कान पर गिरी और वो दर्द से बिलबिला उठा और नीचे की तरफ भागा। काले चूगे में कौन था, वो भी उस आदमी की तरफ भागा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस जिनजादे से नहीं, इंसानों से खौफ आ रहा था। मैं तो शहला बाजी को ही अपना दुश्मन समझ रही थी। ये लोग कौन थे? सब घर वाले फोतकी में गए थे। मैं डरी सहमी वहीं बैठ गई। जिनजादे ने कहा, आप अंदर बैठ जाएं, बाहर बहुत सर्दी है, बहुत जल्द आपको सब पता चल जाएगा, मैं कल आऊँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, मुझे डर लग रहा है। बच्चा मुस्कुराया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उठाने लगा। मैं उठी और कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। न जाने कब नींद आई और सो गई। सुबह मेरी आँख खुली। नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। बाहर धूप निकल आई थी। शायद सुबह के 10-11 बजे होंगे। मैं उठी और कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेरे शोहर आते हुए दिखाई दिए। उनके पीछे अम्मी के कमरे में मैं गई। वो एक बैग में कपड़े डाल रहे थे। मैंने कहा, शोएब ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने कंख्यू से मुझे देखा मगर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कपड़े बैग में रखे, जिप बंद की और बोले, मैं ज़रूरी कपड़े लेने आया था, वापस जा रहा हूँ। ये कहकर वो चल पड़े। मैं चिल्लाई, मेरी बात का जवाब दे, ऐसा कब तक चलेगा? कुछ तो बोले, बुज़दिली की भी आखिर हद होती है। जानते हैं कल रात क्या हुआ? वो बोले, मुझे देर हो रही है, जाने दो। ये कहकर वो चले गए।
मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, मेरा सर फट रहा था। क्या करूं? उसी असना में मुझे शहला बाजी के कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर कमरे की तरफ देखा। पूरा घर खाली था। शहला बाजी के कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। कमरे के अंदर कौन जा सकता था? मैं छत के ऊपर भागी। ऊपर शहला बाजी और उनके शोहर के अक्स मेरे सामने खड़े थे, जैसे हवा में तैरती परछाई हो। शहला बाजी सिसकियाँ लेकर रो रही थी। उनके शोहर ने उन्हें बालू से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वो अपने शोहर के कदमों में गिर गई और बोली, अनस, खुदा के लिए मुझे घर से ना निकालें। मैं सारी ज़िंदगी इस घर में आपकी मुलाजमा बनकर रहूँगी। आपसे कोई शिकवा नहीं करूँगी। मुझे खुद से और मेरे बेटे से जुदा ना करें। उनके शोहर ने उन्हें पीछे की तरफ धक्का दिया और बोला, तुझे रखूँ? हाँ, जाहिल औरत, न कपड़े पहनने की तमीज़, न लोगों में उठने बैठने की तमीज़। मना भी किया था अम्मी अब्बू को कि तेरी मेरे साथ शादी ना करें, मगर उन्होंने अपनी ज़िद पूरी कर ली। अब मैं अपनी ज़िद पूरी करूँगा। ये कहकर उसने शहला बाजी को बालू से पकड़कर उठाया, मगर शहला बाजी मुसलसल उसकी मिन्नत कर रही थी। उसने ज़ोर से शहला बाजी को धक्का दिया और जाने लगा। शहला बाजी ज़मीन पर गिर पड़ी और अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगी, अनस, अनस, मुझे हमल था। अनस, लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये सुनकर अनस शहला बाजी की तरफ लपका। एकदम दोनों परछाई कहीं गायब हो गई। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। मैंने अपना दिल पकड़ लिया। ये सब क्या था? मुझे क्यों दिखाई दे रहा था? क्या ये सब सच था? मगर शहला बाजी ने तो ऐसी कोई बात घर में नहीं बताई। वहीं छत पर बैठी मैं सारा दिन आंसू बहाती और सिसकियाँ लेती रही। शाम हो चुकी थी, रात का अंधेरा भी बढ़ रहा था। आज दूसरा दिन था। मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, मगर भूखी नहीं थी। ईशा की अजान हुई। मैंने वज़ू किया, छत पर ही नमाज अदा की। सलाम फिर आई था कि आहट हुई। मैंने ऊपर से देखा। वही शख्स काला चूगा पहने ऊपर से नीचे तक खुद को ढांप रखा था कि कोई उसे पहचान न ले। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। आज कुछ भी हो जाए, मैंने ये मुअम्मा हल करना था। वो गेट से निकला और बाहर की तरफ चल पड़ा। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा। वो तेज़ कदमों से जा रहा था। गली में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी थी, इसलिए अंधेरा था। मैं उसके पीछे चल रही थी। वो दूसरी गली में मुड़ा। चलते चलते पुरानी बिल्डिंग में गया। ये बिल्डिंग किसी ज़माने में छोटी फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर सालों बंद रहने के बाद अब बिल्कुल खंडर बन चुकी थी। मैं भी उसके पीछे बिल्डिंग में गई। मैंने टूटी खिड़की से देखा। कुर्सी पर एक आदमी मुंह दूसरी तरफ किए बैठा था, जबकि काले चूगे में मलबूस शख्स उसके पीछे खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे का नकाब हटाया। उस आदमी ने मुड़कर देखा और बोला, तू यहाँ से दफ़ा हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि मोहल्ले वालों को इस मोहल्ले के कूड़े के ढेर पर तेरी लाश मिले। काले चूगे में मलबूस शख्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे ज़ोर से धक्का दिया। उसका नकाब उतर गया। ये सब क्या हो रहा था? ये आदमी कौन था? मैं तो इसे नहीं जानती थी। मेरी चीख निकलने लगी थी कि मैंने मुंह पर हाथ रखा। काले चूगे में मेरी नंद बाजी शहला थी। वो आदमी बाजी शहला का गला दबाने लगा। मैं कमरे के अंदर भागी और चिल्लाई, ओए खबीस, छोड़ दे इन्हें। उस आदमी ने बाजी शहला को छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए मुझे देखकर बोला, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते। ज़ैनब, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो बोला, मैं सिकंदर हूँ, इस इलाके का भाई। जानती हो, एक दिन तुम शकूर बेकरी वाले की दुकान पर बेटे का दूध लेने आई थी। तब मैंने तुम्हें देखा। पता चलाने पर मालूम हुआ कि तुम तो उस बुज़दिल शोएब की बीवी हो। फिर तुम्हारी सरपिरी नंद को तलाक हो गई। ये मेरे पीछे फिरने लगी कि मैं इससे शादी कर लूँ। बताओ, क्या मेरे लिए यही पागल रह गई है? फिर उसने पुकारा, ओए करीमा, ले जा इस पागल को अपने साथ वाले कमरे में। एक और आदमी निकला, मगर शहला बाजी करीब रखी हुई टूटी कुर्सी पर बड़े इत्मीनान से बैठी थी। मैं 2 कदम पीछे हटी और बोली, बाजी। जो ही वो आदमी बाजी के करीब आया, बाजी शहला ने उसे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो दूर जा गिरा। ये देखकर सिकंदर गिर जा, तुझसे एक औरत नहीं पकड़ी जा रही। जैसे ही सिकंदर बाजी की तरफ बढ़ा, बाजी ने कुर्सी पर बैठे बैठे उसका गला पकड़कर उसे ज़मीन से 2 फुट ऊपर उठा लिया। मैं हैरत से देख रही थी, बाजी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इतने में सिकंदर का दूसरा साथी खड़ा हुआ। वो बाजी को गुस्से से ललकारते हुए उनकी तरफ बढ़ा, मगर उसी दौरान बाजी की आंखों से तेज़ रोशनी निकली, उस आदमी पर पड़ी और वो वहीं खड़ा रह गया। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद को हिला नहीं पा रहा था। मैं पीछे हटने लगी और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतने में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने चौंक कर दाएं तरफ देखा। वही जिनज़ादा खड़ा मुझे देख रहा था। इतने में शहला बाजी, मेरे शोहर, मेरी सास
और ससुर बिल्डिंग के अंदर भागते चले आए। मुझे तो अब चक्कर आ रहा था। दो दो शहला बाजी, सिकंदर चिल्लाया। मेहरबान भाई, क्या शहला तुम्हारी जुड़वा बेटियां हैं? मेरे ससुर बोले नहीं तो। वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? सिकंदर ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में मुअल्लिक था। शहला बाजी ने कहा, ज़ैनब तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिकंदर चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो। मेरे ससुर बोले, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि तुम ऊपर हवा में कैसे हो? सिकंदर ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इस शहला ने हवा में मुअल्लिक कर रखा है। मेरे ससुर बोले, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। सिकंदर बोला, मेहरबान, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? मुझे भी कुर्सी पर बैठी बाजी शहला नजर आ रही थी। तो उन सबको कैसे नजर नहीं आ रही थी? इतने में कुर्सी पर बैठी शहला बाजी ने सिकंदर का गला जोर से दबाया और बोली, इन लोगों को सच बताओ वरना तुझे मार दूंगी। मैं एक जिन जादी हूँ, समझे? मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। सिकंदर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, जिनजादी? फिर सिकंदर ने वह सारी कहानी मेरे ससुराल वालों के सामने दोहराई जो मुझे बताया था। मेरे ससुर और सास गुस्से से बाजी शहला की तरफ देखने लगे। इतने में सिकंदर धड़ाम से नीचे गिरा और चिल्लाने लगा, हाय मेरी टांग टूट गई, बचाओ मुझे, मेरी टांग टूट गई। इसी दौरान सिकंदर का साथी नॉर्मल हो गया। वो सिकंदर के पास आया। उसने कहा, भाई क्या हुआ? क्या सच में टांग टूट गई? सिकंदर चिल्लाया, ओए जल्दी एम्बुलेंस को बुला, सच में टांग टूट गई। शहला बाजी मेरी तरफ देखते हुए ये कहते बड़ी, ज़ैनब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मगर शोएब ने ज़ैनब को पकड़ा और बोले, बस कर दें बाजी, खुदा के लिए। मगर शहला बाजी थी कि काबू में नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस भी पहुंच गई। सिकंदर की टांग वाकई टूट चुकी थी। मेरे सास ससुर शर्मिंदा थे। ससुर ने कहा, ज़ैनब हम घर जा रहे हैं, आ जाओ। मेरे शौहर ने शहला बाजी को ज़बरदस्ती टैक्सी में बिठाया और अस्पताल ले जाने लगे। वो जिनजाती मेरे सामने खड़ी थी। बच्चे ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, मेरी माँ वापस आ गई हैं। ये मेरी माँ है। आपके घर वालों को मैं ही यहाँ लाया हूँ। मैंने उसे प्यार किया और बोली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिनजादी ने कहा कि काला चूगा पहनकर तुम्हारी नंदी इस आदमी के पास आती थी, मगर तुम उसे माफ़ कर देना, वो बेचारी तो खुद ही बीमार है। बाजी शहला की तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। उन्हें नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने डॉक्टर को जो इंटरव्यू दिया वो बहुत दिल दहला देने वाला था। बाजी शहला का शौहर उन्हें अक्सर मारता पीटता, मगर उन्होंने इज्जत की खातिर कभी जिक्र नहीं किया। बात तलाक तक जा पहुंची। फिर वही हुआ कि बाजी शहला 2 माह की प्रेग्नेंट थी, मगर उनके शौहर ने इतने जालिमाना तरीके से उन्हें मारा कि उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई। ससुराल वालों ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। शौहर ने मामले को ठंडा करने के लिए बाजी शहला को बहला फुसलाकर मामले को दबा दिया। लेकिन जो ही बाजी शहला दोबारा से उनकी बातों में आई, वो फिर से अपनी हरकतों पर उतर आए। उन्होंने बाजी शहला को तलाक दे दी और बच्चा भी छीन लिया। बाजी शहला घर वापस आ गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने लगा। वो मुझसे हसद करने लगी कि वो अपने घर में नहीं आबाद हो सकी तो मैं क्यों बसी रहूं। उन्होंने मुझे बेघर करने का इरादा किया। उधर उनको ये भी ख्याल आने लगा कि जैसे सिकंदर उन्हें पसंद करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ज़हनी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें किसी अनहोनी का गुमान होने लगता है। ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसी शक्लें नज़र आती हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। मगर डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं, वो इलाज से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैं एक आम औरत की तरह अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर ये भी सच है कि कभी औरत को मर्द की बेवफाई बर्बाद कर देती है तो कभी बुज़दिली। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।